لوگ بد دعائیں لیتے ہیں اور کیوں کر کے لوگ اتنا سخت اپنے آپ کو بنا لیتے ہیں کہ وہ نیک صالح اور پاک لوگوں کے بارے میں بھی ان کے نظریات اس طرح کے ہو جاتے. یاد رکھیں جیسا کریں گے پھر ویسا بھریں گے. بولیں بھی سوچ کے, چلیں بھی سوچ کے, مخالفت بھی کریں تو سوچ کے, اور اتنی جتنی کسی کی بنتی ہے. الزام بھی لگائیں تو خدا را اللہ سے ڈر کے, فٹافٹ نہیں, جلدی نہیں. آپ ہر چوتھے بندے کے بارے میں لوگ نہیں کہہ رہے فلانا پیسے کھاتا ہے, بھئی آپ نے دیے یا آپ گواہ بنے جب وہ کھا رہا تھا, آپ نے یہ کیسے بات کر دی. تو ہم تیزی کے ساتھ اس طرح کے اعمال اکٹھے کر رہے ہیں کہ جو ہمارے لیے اذیت کا سبب بنیں گے. میرے رب نے فرمایا احسان کرو, نیکی کرو تاکہ بدلے میں تمہیں بھی نیکی ملے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. کیا ہے نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کے؟ اپنی زندگی میں کوشش کریں کوئی بد دعا نہ لیں, کسی کو اتنی تکلیف میں مبتلا نہ کریں کہ پھر وہ رب کریم کے دروازے پہ جھکے اور ہمارے لیے وہ بد دعائیں کرے. لیکن بندوں کے بارے میں بندوں کا رویہ سخت ہو, اس کا لہجہ رب کریم کے بندوں کے بارے میں تلخ ہو, اس کے دل میں رحم کے, کرم کے میٹھے جذبات ہی نہ سرے سے ہوں, اور وہ کہے کہ میرے بارے میں نرمی کی جائے, تو یہ ہو نہیں سکتا, یہ ممکن نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے تھوڑی دیر کے سکون کے لیے بہت سارے لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں. بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہیں جو دوسروں کو مصیبت میں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. ان کو کل بھی راحت نصیب ہوتی ہے, کسی شخص کو مشکل میں دیکھتے ہیں, پریشانی میں دیکھتے ہیں تو بڑا انہیں سکون میسر آتا ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ بغلیں بجاتے ہیں اور وہ باقاعدہ دلائل دیکھے ہیں, دیکھا نا ہمارے ساتھ ایسے کرتا تھا تو آج اس کا کیا حال ہو گیا ہے. باقاعدہ لوگ یہ کام کرتے ہیں. وہ ہمارے درویشوں نے اپنے رنگ میں بھی ہمیں بڑے مسئلے سمجھائے ہیں, پر اللہ کرے ہماری سمجھ میں بات آئے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کو مصیبت میں دیکھ کے خوشی کا اظہار نہ کرو, اسے تکلیف میں دیکھ کر کبھی خوشی کا اظہار نہ کرو, ورنہ حضور فرماتے ہیں اللہ اس پر رحم کر دے گا اور تمہیں اس مصیبت میں مبتلا کر دے گا. آپ یقین کریں کہ میں نے دیکھا ہے کہ بھابھی کا خاندان کسی تکلیف میں آ گیا ہے تو وہ بجائے اس کے کہ ان کے لیے دعا ہوتی, لیکن شریکہ چل رہا ہے نا, تو تبصرے ہوتے ہیں کہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا یہ لوگ ٹھیک نہیں. یہ بامروت, با اخلاق اور وفادار لوگوں کا یہ رویہ ہی نہیں ہوتا. وہ تو گہرا دشمن بھی ہو, گہرا, اس کے بارے میں بھی دیکھیں نا میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کافروں اور منافقوں پر نرم دل نہیں تھے. ان کے بارے میں بھی حضور دعائیں کرتے تھے کہ اللہ انہیں خیر کی توفیق عطا فرما. تو کبھی بھی کسی کے بارے میں اس طرح کا رویہ اختیار نہ کریں, ورنہ وہ وقت دور نہیں کہ جب آپ اسی طرح کا ہمارا معاملہ عیب تلاش کرنے کا ہے. میں کس طرح کھول کے آپ کو یہ بات عرض کروں کہ لوگوں کا دل کرتا ہے کہ ہمیں خوبیاں نہیں کمیوں کا بھی پتہ چلے. ٹٹولتے ہیں کہ تو وہاں نہیں جاتا, تو جاتا تھا تو اب کیوں نہیں جاتا, اور تو اگر جاتا ہے تو پھر تو کوئی کہانی سنا, کوئی بات چھیڑ. یہ ہمارا مزاج ہے. ہم چاہتے, میرے رب نے ہمیں محدود بنایا ہے, ہم لامحدود کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ نے ہمارے اوپر رحم فرمایا ہے کہ ہمیں دیوار کے پیچھے نظر نہیں آتا, یہ اس نے کرم فرمایا. اگر ہمیں نظر آتا ہوتا تو کتنے پردے کھل جاتے, اور بہت ساری چیزیں جو پردوں میں رہنی چاہیے تھیں وہ پردوں میں نہ رہتی ہیں. اس نے کرم فرمایا ہے کہ ہمیں دیوار کے پیچھے نہیں سنتا, اس کو کرم سمجھو, پردے نہ کھولو. اگر ہمیں یہ خبر ہوتی کہ سامنے کیا ہے تو بہت سارے ہمارے معاملات خراب ہو جاتے. اس کا شکر ہے, اس کا کرم ہے. یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے, اور وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے. مہربانی کریں, آپ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں محدود بنایا تو لامحدود ہونے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ جہاں اس نے رکھا ہے وہیں رہنے کو اپنے لیے بہتر جانو, وہیں, ورنہ حالات خراب ہو جائیں گے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسند احمد میں موجود ہے, حضور فرماتے ہیں لوگوں کی جاسوسی نہ کرنا, ان کے عیب نہ ٹٹولنا. بس حضور نے کہہ دیا تو کہہ دیا, نہیں ٹٹولنے تو سونیا تیرے غلام ہیں.
सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम कभी ये काम करें। हुजूर ने फरमाया किसी के ऐब न टटोलना। अगर तुमने किसी के ऐब टटोल के उसे रुसवा करने की कोशिश की तो फरमाया तुम अगर 7 पर्दों के अंदर भी बैठे हुए तो वहां भी अल्लाह तुम्हें रुसवा कर देगा। ये ना समझना कि मैं छुप गया हूं तो बच जाऊंगा, अल्लाह तुम्हें वहां भी रुसवा। तो कुछ जुर्मों की दुनिया में हम देखते हैं और उसका सादा तर्जुमा ये है कि जैसा करोगे फिर वैसा भरोगे, ये होता है, आप इससे बच नहीं सकते। और उस वक्त बंदा बड़ा स्मार्ट होता है, वो अपने आप को बड़ा तेज समझता है, वो कहता है मैंने पत्ता फेंका था तो मेरा पता चल गया है, देखा ना फिर। और अब कई दफ़ा मैंने देखा है शरीफ आदमी मजबूर होता है, वो क्या कर सकता है। शरीफ जो हुआ, शर और शरीफ इनका मुकाबला नहीं होता, एक चीज़ है शर, तो शरीफ उसका मुकाबला कैसे करेगा। बल्कि शरीफ आदमी तो कई दफ़ा वैसे ही बचता है, कहता है यार मतलब किसी तरीके जान छुड़ाएं, ये शर है और मैं बावजू रहने वाला आदमी हूँ, मैं गंद में कैसे हाथ डालूंगा। वो बचता है तो लोग समझते हैं डरपोक है, हालांकि डरपोक और होता है और शरीफ और होता है। तो शराफत को लोग बुज़दिली जानते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला और अशरा मुबशरा सहाबी हज़रत उमर के बहनोई हैं। और ये हवाला मैं आपको मुस्लिम शरीफ से अर्ज़ कर रहा हूँ। हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो खूबसूरत आदमी हैं जिन्हें दुनिया में चलते फिरते मेरे नबी पाक ने जन्नत की बिशारत अता फरमाई। बंदे का कद काठ देखें कि जन्नती बंदा, यानी इतना एतमाद हुजूर ने किया कि फरमाया इसके बाद वाले आखिरी दम तक के आमाल पर भी मैं जानता हूँ ये जन्नतियों वाले काम करेगा। इतना बड़ा आदमी, लेकिन एक औरत ने आके झगड़ा शुरू कर दिया। अरवा उस औरत का नाम था। उसे आके हज़रत सईद बिन ज़ैद से झगड़ा शुरू किया कि ये जो मकान है ना आपका, इसमें इतनी जगह मेरी है, मुझे आप बताएं एक शरीफ आदमी से औरत झगड़ा करे तो बंदा जवाब में कुछ कर सकता है। अब मेरी बात को समझें, आप शरीफों की मजबूरियां तो समझें कितनी ज़्यादा हैं। भाई एक औरत आ गई, उसने दावा कर दिया, अब बिना वजह इंसान कटहरे में खड़ा हो जाता है। यहाँ को बंदा आगे कह देता है, कहता जी मैंने 20 लाख रुपया लेना है, तो शरीफ आदमी उधर क्या करेगा, वो तो मुफ्त में, और दाएं बाएं बैठे लोग वैसे ही परेशान हो जाएंगे कि पता नहीं को बात होती है तो कोई आता है ना। उसने कह दिया कि मकान में मेरा हिस्सा है, और कह किसे दिया, उसे जिनके आमाल के सही होने की गवाही मदीने वाले रसूल ने अता फरमाई। उसने कहा जनाब ये मकान में मेरा हिस्सा है। अब हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे ये ज़मीन इसी को दे दो। खत्म हो गई बात। शरीफ आदमी कैसे झगड़ा करे। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अगर इस तरह भी बंदा कर दे तो बातें फिर भी होती हैं। लोग कहते हैं बिला वजह तो नहीं ना दे दी, ऐसे तो नहीं ना कोई दे देता 4 मरले, ओ भाई ऐसे तो नहीं ना। फौरन फरमाया हज़रत सईद बिन ज़ैद, फरमाया दे दो इसे। तो आपके अहले खाना कहने लगे हुजूर जब आप इसे क्यों दे रहे हैं। फरमाया तुम दे दो। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने एक बालिश्त ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा किया, अल्लाह क़यामत के दिन 7 ज़मीनों का तोक बना के उसके गले में डाल दे। फरमाया उठाने दो इसे, तोक इसे उठाने दो। और एक हदीस में फरमाया 7 ज़मीनों में धंसा देगा अल्लाह उसे, इसे उठाने दो, दे दो। लेकिन तकलीफ़ तो होती है ना। अब ये नहीं है कि कहाँ से इतना हौसला बंदा करे, दिल तो टूट जाता है ना कि यार मेरे ऊपर इस तरह इल्ज़ाम लगाना, और इस तरह किसी शख्स के बारे में, वो बंदा जिसने ज़िंदगी तकवे में गुजार दी, उस पर इतना घिनौना इल्ज़ाम लगा देना। अब हज़रत सईद बिन ज़ैद ने ना लोगों को कह दिया दे दो, लेकिन जब तन्हा गए तो दिल टूटा हुआ था, कलेजा फटा हुआ था, तबीयत परेशान थी। हाथ उठाए, कहा अल्लाह सच्चाइयाँ भी तू जानता है, झूठ भी तू जानता है, ज़ाहिर चीज़ों को भी तू जानता है, छुपी हुई को भी तू जानता है। अल्लाह अगर ये झूठी है तो इसे अंधा कर दे, और अल्लाह ये जो ज़मीन इसने मुझसे ली है ना, फिर इसमें इसकी कब्र बना दे। बाद शारहीन ने लिखा है कि हज़रत सईद बिन ज़ैद तो पहले विसाल कर गए, लेकिन वो औरत ज़मीन तो ले ली, घर में रहती थी पर अंधी होकर रहती थी,
ढूंढती फिरती थी, दाएं बाएं जाती थी, तो लोग उसे कहते थे क्या बना? कहने लगी कुछ ना पूछो, मुझे सईद बिन ज़ैद की दुआ लग गई है, मुझे लग गई दुआ। तड़पती थी, रोती थी, कुआं खुदवाया हुआ था, अमीर लोगों ने घर में कुआं खुदवाया हुआ था, तो यूं लगता है कि पानी भी कोई नहीं पिलाता था, कोई नवासा नवासी पोता पोती भी करीब नहीं आता था। पानी पीने के लिए कुएं में गई तो अंदर डूब के मर गई। उसका घर ही उसकी कब्र बन गया। देखिए ना, लोग उस वक्त समझ रहे होते हैं कि जनाब देखा ना मेरा पता चल गया, हंस रहे होते हैं कि देखा मैंने कितना रुसवा कर दिया, देखा फिर फलाना कितनी मिन्नतें कर रहा था, देखा, और तुम्हें पता नहीं। तुम क्या समझते हो कि जिसको तुमने रुसवा करना चाहा उसका किसी जो है वो वज़ीर मुशीर और बड़े आदमी से ताल्लुक़ नहीं था तो वो तुम्हारे हत्थे चढ़ गया? याद रखना, अगर उसका वज़ीरों मुशीरों से ताल्लुक़ नहीं ना गरीब का, तो अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू, अल्लाह तो वारिस है कि नहीं मोमिनों का? अल्लाह तो वारिस है कि नहीं मोमिनों का? नबी पाक तो वाली हैं कि नहीं अपनी उम्मत के? तो तुम किस तरह समझते हो कि बंदा और वारिस शाह मान करी ना वारसादा, रब बेवारसा करके मार दई। तो हम जब चल रहे होते हैं ना तो फिर तो हमारी कद काठ का कौन मुकाबला करे, और जब हम चढ़ जाएं हवा के घोड़े तो फिर कौन हमारा रुख फेरे। लेकिन याद रखना, एक कदल करने वाली ज़ात है, जब लगामें खींचती है तो फिर लोगों को कोई चारा, अपनी ज़िंदगी के अंदर कभी भी कोई काम ऐसा ना करें, कभी भी। आगे बढ़ता हूँ। बसरे का गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ बड़ा जालिम आदमी था, तो हज़रत सईद बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु एक ताबी बुजुर्ग थे, तो आप ना उसके गलत कामों पर उसे टोका करते थे। हमारा ये मसला होता है कि जब हमें कुछ टोकता है तो हमें ज़िद चढ़ती है, ये नहीं देखते कि मैं पहले देख लो मेरी कहीं कुताई पे तो नहीं टोक रहा। वो जालिम था, आप उसे टोकते थे। तो जब रोक टोक होने लगी तो ये जो बादशाह किस्म के लोग होते हैं, इनकी ख्वाहिश होती है कि हमें पूछने वाला कोई ना हो। रोक टोक बड़ी तो उसने बुला लिया हज़रत सईद बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु को, बुला के कहने लगा मैं आपको कत्ल करूँगा। तो आप फरमाने लगे जिस तरह तू मुझे कत्ल करेगा ना, मेरा रब भी तुझे उसी तरह ही कत्ल करेगा। अल्लाह वाले थोड़ा किसी से डरते हैं, वो उसी तरह तुझे कत्ल करेगा। कहने लगा हज़रत सईद बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु से कि अगर आप मुझसे माफ़ी मांग लेंगे तो मैं आपको छोड़ दूँगा। तो आप फरमाने लगे माफ़ी तो मैं रोज़ मांगता हूँ, पर सिर्फ अपने रब से, तुझसे काहे की माफ़ी मांगूँ, किस बात की तुझसे माफ़ी मांगूँ? कहने लगा फिर आप बाज जल्लाद से कहने लगा इसे कत्ल करो। आपने हंसना शुरू कर दिया। तो वो कहने लगा हंसते क्यों हो? फरमाने लगे तेरी जुर्रत पे हंस रहा हूँ कि खुदा का कमज़ोर बंदा हो के तो किस तरह की जुर्रत के साथ बातें कर रहा है कि मैं तुझे कत्ल करा दूंगा। उसने कहा पकड़ो, और गुस्से में आ गया, पकड़ो और इन्हें कत्ल करो। जब कत्ल करने लगे तो आपने मुंह काबे की तरफ कर लिया और पढ़ा इन्नी वज्जहतु वजही लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन। काबे की तरफ मुंह करके ये दुआ पढ़ी तो कहने लगा अच्छा इसका रुख फेर दो काबे से। तो आपका जब रुख फेरा तो आप फरमाने लगे तो बड़ा ही बेवकूफ़ है, फ़इन्नमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह, तुम्हें पता नहीं मुंह जिधर भी करे अल्लाह उधर ही होता है। तू बड़ा बेवकूफ़ है, तू काबे से रुख फेर के समझता है कि अल्लाह कोई माज़अल्लाह मुक़य्यद है, इधर रब तो हर तरफ है। जलवा तेरी ज़ात का कू बकू है, मैं जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, जिधर देखता हूँ उधर। जे मैं तेनू अंदर जाना तो फिर मुक़य्यद जाना, तो जे मैं तेनू बाहर जाना तो अंदर कौन समाना, अंदर भी तू है ते बाहर भी तू है ते बुल्ला कौन नुमाना। फरमाया कि भाई हर तरफ ही अल्लाह। अब उसने पता क्या किया, आपको जब कत्ल करवा रहा था ना तो हज़रत सईद बिन जुबैर ने हाथ उठाया कि अल्लाह मेरे बाद इसे किसी और को कत्ल करने का मौका ना देना, मैं इतनी बात किसी और पर इसे मुसल्लत ना करना। हज़रत सईद बिन जुबैर कत्ल हुए, शहीद हुए तो इतना खून बहा कि खून बंद ही नहीं होता, इतना खून। वो कहने लगा वज़ीरों से, मुशीरों से, तबीबों से कि इतना खून। तो वो कहने लगे बादशाह ये खून बताता है कि ये बंदा तुझसे डर के नहीं मरा, वरना तो तलवार बंदे के करीब आती है तो खून खुश्क होता जाता है, वरना तो हुक्म होता है सजाए मौत का तो लोगों के कपड़े ढीले हो जाते हैं।
जिस्म कमज़ोर हो जाता है। ये बंदा निडर था, इसलिए इतना खौफ, इसका खून निकला है कि इसे कोई डर नहीं था। हज़रत सईद बिन जुबैर को कत्ल करने के बाद ना हज्जाज बिन यूसुफ 15 दिन जिंदा रहा है, सिर्फ 15 दिन। कैंसर हो गया पेट में, इतनी तकलीफ़ हुई कि जिस बीमारी को आज आप कैंसर कहते हैं कि किसी की समझ में नहीं आता था। तबीब गोश्त की बोटी डालता था धागे के साथ पेट में, तो बाहर आती थी तो वो गल सड़ के बाहर निकलती थी। उसके अपने भी उसके कमरे में नहीं जाते थे। ओ यारो, जुल्म करते हुए लोग सोचते नहीं कि इसका हिसाब कितना भयानक होगा। रात को चीख मार के उठता, घर वाले कहते तुझे क्या हुआ? वो कहता था जब भी मैं सोता हूँ तो सईद बिन जुबैर मेरी ख्वाब में आते हैं और मेरी टांग पकड़ के घसीटते हैं तो मेरी आंखें खुल जाती हैं। ये जो बद्दुआएं हैं ये तुम्हारे बिस्तर तक तुम्हारा पीछा करती, ये नींदों में सुराख कर देती। लोग कहते हैं पता नहीं क्या बात है, सोया नहीं जाता। तो मैं कहता हूँ पता कर लो, शायद को बात निकल ही आए। पता कर लो, देख लो, गौर कर लो, तवज्जो कर लो, शायद को बात निकल आए। अगर निकल आए ना तो फिर तौबा कर लो, और अगर निकल आए तो फिर माफ़ी मांग लो। अगर निकल आए तो फिर अल्लाह से डर जाओ, अगर निकल आए तो फिर एहतियात कर जाओ। लेकिन बातें निकलने पर भी हम मानने को तैयार। तो ये मत समझे कि जब इंसान किसी का जुल्म करेगा तो वो चैन की नींद सोएगा। जी हो सकता, जैसा करोगे फिर वैसा, जैसा करोगे फिर वैसा। मुझे बड़ी एक शख्स की, और मैं उस बंदे को दाद देता हूँ। उसने बड़ी आला एक दफ़ा बात की। मुझे किसी ने बताया कि ये फ़लाना आदमी अपने बाप का बड़ा सख्त नाफरमान है। तो मैं चला गया और मुझे पता चला कि वो बेचारे जो हैं इसके वालिद वो तकलीफ़ में हैं। तो मैंने जाके उनसे कहा कि आप मेहरबानी करें उस बच्चे से कि अपने अब्बे को राज़ी कर। तो मुझे कहने लगा पीर साहब आपके आने का शुक्रिया, पर ये जो कर रहा है ठीक कर रहा है। मैंने कहा क्यों? कहने लगे मैंने इससे बढ़कर अपने अब्बा को सताया, ठीक कर रहा है। वो रोता था शख्स, वो रोता था, कहता था मैंने इससे ज़्यादा ज़्यादतियाँ की। तो ये जो मेरे साथ कर रहा है ना ये सही कर रहा है। ये मेरी बहू के सामने जब मुझे बुरा भला कहता है तो ये मेरी सज़ा, ये मेरा बनता था, मेरे साथ होना चाहिए था। ये अपने बच्चों के सामने जब मेरे साथ सख्त रवैया इख्तियार करता है तो ये जो ठीक कर रहा है, जो भी कर रहा है। लेकिन मैंने उसके बेटे को कहा, मैंने कहा पुत्र जहाँ तेरा वालिद आज खड़ा है तू भी कल यहीं खड़ा होना चाहता है। तेरा भी इरादा है कि इसी जगह कल तुझे खड़ा किया जाए इसी कटहरे में। कहने लगा नहीं। तो मैंने कहा फिर तू अल्लाह पे छोड़, तू किस चक्कर में पड़ गया। आप यकीन करें, आप सुकून दें, दिल पे हाथ रख के अपने आप से पूछ लो कि माँ बाप जिनके चले गए वो राज़ी गए? ना किसी को बताना, ना किसी से जिक्र करना, वो अपने आप से पूछ लो। अगर वो राज़ी नहीं गए तो फिर कब्रों पे जाओ, कि फिर उनके लिए दुआए मगफिरत करो, फिर कब्र पे ही बैठ जाओ।